کیا حج کرنا ایک اسلامک پریکٹس ہے یا اصل میں ایک کاپی کی گئی پیگن پریکٹس ہے؟ کیا محمد صاحب نے اسلام کے باقی ریچولز کی طرح ہی حج کو بھی عرب کے بت پرستوں سے چرایا ہے؟ اور کیا عربک کلچر کو کاپی کرتے کرتے رسول نے جانوروں سے سیکس بھی حلال کر دیا تھا؟ سمجھیں گے آج کی ویڈیو میں، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک۔ شروع کرتے ہیں بنا اللہ کا نام لیے۔ اسلام، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تیسرا اور آخری ابراہمک ریلیجن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے آخری نبی محمد صاحب پر نازل ہوا اور پھر انہوں نے لوگوں کو اس نئے مذہب کی دعوت دی، ان لوگوں کو جو اس زمانہ جاہلیت کے بت پرست تھے اور جو عرب میں مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ مگر اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مذہب اسلام کو صرف اس وقت کے یہودیوں، عیسائیوں اور پیگنز کے کلچر اور انہی کے ٹریڈیشن سے ہی چرا کر نیا مذہب بنا دیا گیا۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ محمد صاحب آخری شریعت لائے، تب ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی شریعت کچھ نئی اور باقیوں سے بہتر ہوگی، مگر حقیقت اس کے الٹ ہے۔ اسلام میں صرف جنت میں ملنے والی 72 حوریں اور شراب کی ندیوں کی عیاشیوں کے علاوہ سارا کا سارا میٹیریل کہیں نہ کہیں سے کاپی پیسٹ ملتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک یعنی حج کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح حج میں کیا جانے والا ایک ایک عمل آلریڈی محمد صاحب کے وقت سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا، جسے یہودی عیسائی تو نہیں مگر عرب کے بت پرست فالو کرتے تھے۔ یعنی یہ بہانہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ عمل پہلے کسی نبی نے بھی کیا ہو۔ اب دیکھتے ہیں حج اصل میں ہے کیا۔ حج کے موقع پر مسلم کعبے کا طواف کرتے ہیں، یعنی اس کے چاروں طرف 7 بار چکر لگاتے ہیں، احرام نام کا سفید بنا سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ نام کے دونوں پہاڑوں کے چکر لگاتے ہیں، اور حج کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ بس یہی ہے پورا حج۔ یہ ہر ایک عمل محمد صاحب کے وقت سے پہلے بھی عرب میں رہنے والے بت پرست جو مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ اس حج کو پرفارم کرتے تھے، اور پھر محمد صاحب نے بھی اسی کام کو ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کعبے کی، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کیوب شیپ کی بلڈنگ جس پر کالا کپڑا لپٹا ہے۔ یہی وہ قبلہ ہے جہاں روک کر کے مسلم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی عرب کے بت پرستوں کی ہی دین ہے۔ دراصل یہ ان کا مندر تھا جسے خود وہاں کے بت پرستوں نے بنایا تھا، جہاں 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی تھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ مگر اسلامک حکومت آنے کے بعد محمد صاحب نے اس مندر کو مسجد میں کنورٹ کر دیا۔ آئیے اب کعبے کے اتہاس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسلام، کعبہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ابراہیم نام کے نبی نے اسے دوبارہ بنایا عبادت کرنے کے لیے۔ ابراہیم، جو کہ بائبل کا ایک امیجنری کریکٹر ہے جس کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس بات کا تو ذرا بھی نہیں کہ ابراہیم نام کا کوئی شخص کبھی عرب میں آیا ہو اور کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا ہو۔ نہ کوئی ہسٹریکل، نہ سائنٹیفک اور نہ ہی آرکیولوجیکل ایویڈنس ہمیں ملتا ہے۔ خیر، قریش قبیلے والے جو کہ اسلام سے پہلے مکہ میں راج کرتے تھے، انہی لوگوں نے اسے 608 میں دوبارہ سے اسے چنوایا، اور اب کی بار اسے بنانے میں لکڑیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کا ایک دروازہ بنایا گیا اور چھت بھی بنائی گئی۔ محمد صاحب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے دادا یعنی ابو مطلب ہی اس کعبے کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ سن 620 میں نبی مکہ سے مدینہ بھاگ گئے تھے، کیونکہ یہاں ان کے اسلام کے پرچار اور ان کے بت پرستی کے اپمان کرنے کو لے کر بہت ویرودھ ہوا تھا۔ 624 میں نبی نے اسے قبلہ گھوشت کر دیا، اور نماز کی ڈائریکشن اس کی طرف ہو گئی، جو کہ پہلے جروسلم کی طرف ہوتی تھی، جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ 10 سال بعد یعنی 630 میں نبی واپس مکہ آئے، اور مکہ فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہاں قبضہ کر کے اس کے اندر رکھے 300 سے بھی زیادہ مورتیوں کو توڑ دیا، اور اس کے بعد یہاں اسلامک پریکٹسز شروع کی گئیں۔ نہ ہی ابراہیم کے بعد کسی نبی نے دوبارہ کعبے کو وزٹ کرا، نہ ہی کعبے کی طرف روک کر کے عبادت کی گئی۔ اس کے ثبوت بھی بائبل یا قصص الانبیاء یعنی نبیوں کی کتاب کہیں پر نہیں ملتے۔ یہ بس پیگنز کا اپنا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کے لیے اس طرح کی چکور عمارتیں بناتے تھے، اور پھر اس پر مورتیاں رکھ کر اسے پوجتے تھے۔
अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर सबूतों के साथ रोशनी डालते हैं कि कैसे नबी ने हज की प्रैक्टिस को यूनिक बनाने की कोशिश की। नंबर 1, पहले से मौजूद दूसरा काबा। अरब में उस वक्त भी एक से ज़्यादा काबे थे, जिसमें से यमन के इस काबे, जिसे जुल अल खलसा कहा जाता है, नबी ने अपने एक सहाबी को भेजा और इस काबे को ढाने के लिए बोल दिया, ताकि इनके काबे के अलावा और कोई दूसरा काबा ना बचे। साहिह बुखारी 4355, ज़रीर कहते हैं, मुझसे रसूल ने फरमाया कि जुल अल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। फिर मैं घुड़सवारों को लेकर काबे को ढाने के लिए निकल गया, और जो काबा मक्का में था उसको रसूल पहले ही इस्लामिक काबे में कन्वर्ट कर चुके थे और वहाँ रखी 360 मूर्तियों को तोड़ चुके थे, जिसका सबूत ये हदीस है। नबी करीम फ़तेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी, जिससे आप इन बुतों पर मारने लगे। मतलब इस्लाम में आप दूसरे मज़हब पर ब्लास्फेमी आराम से कर सकते हैं, मगर कोई इस्लाम पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। किबले का बदलाव। मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था। जब मोहम्मद साहब ने दावा करके वो एक ही रात में मक्का से जेरूसलम और फिर जन्नत का सफ़र कर लिया और वहाँ से नमाज जैसी इबादत लाए, जिसको अदा करने के लिए पहले रुख जेरूसलम की तरफ करते थे, क्योंकि यहूदी भी वहीं रुक करके इबादत करते थे, मगर फिर यहूदियों की मुखालफत करने के चक्कर में इन्होंने काबे को नया किबला बना लिया। अब देखते हैं वो रिचुअल्स जो पैगन्स फॉलो करते थे और मोहम्मद साहब ने इसे इस्लाम में भी अलो कर दिया। तवाफ़। एक हदीस से पता चलता है कि लोग काबा का तवाफ़ करते थे और कुछ तो नंगे होकर तवाफ़ करते थे, मगर उन्हें रोक दिया गया। अब उनकी जगह मुस्लिम उस जगह तवाफ़ करते हैं। इसका भी सबूत हमें इस हदीस से मिलता है, यानी ये अमल पैगन्स का चुराया गया है। नंबर 2, सई। अब देखते हैं हज का एक और अमल जिसे सई कहते हैं, यानी सफ़ा और मरवा नाम के 2 पहाड़ों के चक्कर लगाना। एक हदीस में इसे पुराने ज़माने की जाहिलियत बताया गया, यानी ये भी पैगन्स के कल्चर का हिस्सा था। और फिर मोहम्मद साहब ने इसको भी हज करने के लिए एक कंडीशन बना दी और ये आयत नाजिल हुई, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाजा जो शख्स अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच सही कर ले, यानी तेज़ी से फेरा लगा ले। उस वक्त के मुस्लिमों को पता था कि ये बुत परस्त मुशरिकों का तरीका है, इसलिए पहले तो वो इस अमल को करने से रुक गए, मगर कुरान की इस आयत के बाद उन्होंने भी तवाफ़ करना शुरू कर दिया। पत्थरों की पूजा। एक हदीस से ये क्लियर होता है कि पत्थरों की पूजा और उनका तवाफ़ यानी इर्द गिर्द घूमना भी पेगन्स का ही कल्चर था। इसको थोड़ा सा बदलकर इसे किस करना कर दिया गया, यानी काबा में लगा पत्थर हजर अस्वाद। इस पत्थर का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, जिस पर मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। दरअसल इस पत्थर की स्टोरी भी इब्राहीम से जुड़ी है कि इब्राहीम ने ही इस जन्नत से उतरे पत्थर को यहाँ लगवाया था और इसलिए ही इसे बोसा दिया जाता है, यानी किस किया जाता है। इनफैक्ट उमर ने भी इस पत्थर को मजबूरी में एक्सेप्ट किया था, जो इस हदीस से क्लियरली पता चलता है। नंबर 4, हाजियों का ड्रेस कोड और इसी तरह एहराम नाम का एक सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना, जो मक्का के मुशरिक पहन के हज करते थे, जो कि हमें इस्लाम की ही एक हदीस से पता चलता है। पॉइंट नंबर 5, कुर्बानी। कुर्बानी में सिर्फ इतना बदलाव किया गया कि पहले अरबियन लोग बलि देते थे और बाद में इसे कुर्बानी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अरबिक कल्चर में इस्लाम से पहले जानवरों के साथ सेक्स करना भी आम बात थी और मोहम्मद साहब ने भी इसे अलाउड कर दिया था, लेकिन आज इसे छुपाने की कोशिशें होती हैं और हदीसों के मतलब बदल दिए जाते हैं। ज़रा इस हदीस को पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जो चौपाए से मतलब 4 पैर के जानवर से जमा करे मतलब सेक्स करे, इस पर हद नहीं है। इस पर हद नहीं है का सीधा सीधा मतलब यह है कि इसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका सीधा सीधा रीज़न यह है कि ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी जिसे बिना सज़ा मुकर्रर किए छोड़ दिया गया। और इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि 4 पैर के जानवरों से सेक्स करना अलाउड है। हालांकि सफाई पेश करने वाले कह सकते हैं कि एक हदीस मौजूद है जिसमें लिखा है कि किसी शख्स को अगर जानवरों के साथ हम बिस्तर करते पाओ तो उस शख्स को और जिस जानवर के साथ किया गया हो दोनों को कत्ल कर दो। पहली बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती, और दूसरा कि मेरी नज़र में ये इस्लाम की एक कॉन्ट्राडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िक़ह की किताबों में यानी इस्लाम के जो अलग अलग फ़िरके हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें भी ये बात डिटेल में आई है कि जानवरों के साथ सेक्स करने पर कोई सज़ा नहीं है।
इन किताबों पर भी बहुत जल्दी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ये थी सच्चाई इस्लामिक हज की। मेरे मुस्लिम भाइयों, आप किसी खुदा का फरमान नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि 1400 साल से भी बहुत पहले के अराबियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो कल्चर जिसमें खुदा के डर से लोग पत्थरों के इर्द गिर्द घूमते थे और अपनी जान बचाने के लिए मासूम बेगुनाह जानवरों की बलि दे दिया करते थे। आप भी वही कर रहे हैं, बस कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा के हिसाब से। आज के वक्त अरब सरकार हर साल हज से $8 बिलियन का बिजनेस करती है, जबकि उम्रा से $4 बिलियन का, जिसमें ना जाने कितने बेगुनाह बकरों की भी जान ले ली जाती है, जो कि कोई खुदाई फितरत नहीं नजर आती। क्या हमें इस्लाम की ये प्रैक्टिसेस बस इसलिए फॉलो करनी चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम घर में पैदा हुए? लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए और मुसलमान ना बन के एक इंसान बनिए, और इस्लाम को अपना सहारा ना बनाकर साइंस को अपना सहारा बनाइए। मज़हब इंसान को वक्त में बहुत पीछे ले जाते हैं, तरक्की करने से रोकते हैं और लोगों की सोच को लिमिटेड कर देते हैं। अपनी सोच का विस्तार कीजिए और इन मज़हबों की जाहिलियत से दूर रहिए, क्योंकि इन घिसी पिटी पुरानी परंपराओं को छोड़कर ही एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, जिसके लिए हमें मज़हबों की नहीं बल्कि साइंस को पढ़ने की, समझने की और अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।